All right, welcome to yet another episode of Candid Talks. As you know, this is a show that talks about the story between can and did. A lot of us want to do a lot of things and we believe we can. Only a few of us actually go out there and do it. My attempt through this particular series, my Saturday interview series, is to bring to you some incredible stories that talks about the effort, the stress, the struggle, the perseverance, and eventually the success, and perhaps some failures in achieving what they believed they can. Today, I am extremely proud to present to you a story that we often ignore, a story of a vertical that perhaps is just gaining some momentum, but we are still leaps and bounds behind as a country. Yes, I'm talking about farming and I'm talking about farmers. As I told you in my previous episodes, I have partnered with the authors of the book Dhul, Dhoop, and Dhakka, who have conglomerated about 14 brilliant stories to bring you lessons, failures, successes, and inspirations. Today, I'm going to be talking to two people that have inspired me already so much just by reading about them. I have Vikas ji with me, and I have Dr. DK Mishra ji with me. Before I even introduce them to you, you should know what their story is all about. Dhul, Dhoop, and Dhakka, the book talks about the struggle, the perseverance, and the push that you need sometimes. So I have somebody who perhaps they cannot be a better example of talking about Dhoop and Dhul, uh, which is a farmer, and the important push farming as a sector, the dying sector, the incubate. We talk about incubators. This one is on ventilator right now. And I have somebody, Dr. Mishra, who's actually providing that crucial dhakka, the push to make our Indian farmers be successful at a global level. Mishra ji and Vikas ji, thank you. Dhanyavad. आप हमारे शो पे आए. Just another thing to my users. For the first time, I'm going to do this interview in English and Hindi. Of course, we'll add subtitles. Sir, आप दोनों के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है. आई एम फ्रॉम हैदराबाद. हमारी हिंदी थोड़ी अलग होती है. ये ऐसे हिंदी इंटरव्यू के तौर पे प्रोफेशनली बात करना मेरे लिए पहली बार है. मैं अपना बिल्कुल 100% कोशिश लगाऊंगा कि मैं अच्छे से हिंदी में बात करूं. अगर कोई भी गलती हो जाए, कृपया करके क्षमा कर दीजिए प्लीज. थैंक यू. सो विकास जी, आप किसान थे पहले, ठीक है. उससे भी यस पहले आप इतने सारे स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में. आपने खुद से पढ़ाई की. लोग यहाँ पे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होता, तो वो छोटे छोटे काम कर लेते हैं, इधर उधर काम कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं. आप तो सीधा खेती कर दी, मैंने ये सुना है सर. तो आपका आज 12 करोड़ का टर्नओवर वाली एक नर्सरी आप कर रहे हो, मेरी गोल्ड सीड्स का. आप नर्सरी चलाते हो और भी बहुत सारी चीजें आपके नर्सरी में. एंड मैंने सुना है आपने 12 करोड़ का टर्नओवर किया है नर्सरी चलाते हुए. सर, आज आपको क्या लगता है किसान के लिए क्या चुनौती है सर इंडिया में? पहले तो खेती करने वाले हमारे किसान जो भाई है वो पढ़े लिखे नहीं होते. हाँ जी. ज्यादा ज्यादा खेती का ऐसा ज्ञान लेके खेती नहीं करते होते. ग्रेजुएशन हुआ है, कॉमर्स किया, आर्ट किया है, लेकिन उसका वो पढ़ाई का खेती में कुछ उसका बेनिफिट नहीं होता. तो उसमें बिजनेस के तौर पे खेती करना वो उनको नहीं आता, कि उनको फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आता, उनको फोरकास्टिंग करना नहीं आता. और खेती में बहुत रिस्क भी है, जैसे कि क्लाइमेटिकल कंडीशन रहता है, ज्यादा बारिश, कभी सूखा, कभी मार्केट गिरता है. बहुत से चैलेंजेस को फार्मर को फेस करना पड़ता है. उसमें कभी कभी फार्मर ऐसे रिस्क लेते 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 उनका रिस्क लेने का एबिलिटी भी बहुत रहता है, लेकिन कभी कभी उनका रिस्क उल्टा पड़ता है, उल्टा पड़ता है, उल्टा पड़ता है. कर्जे में डूब जाता है, कर्जा सिर पर आता है और वो फेल्योर के ज्यादा फेल्योर लेके फ्रस्ट्रेट होता है.
और उसमें बहुत से फार्मर ऐसे भी है जो प्लानिंग करके, फाइनेंशियल प्लानिंग रहता है उनका, फोरकास्टिंग रहता है, सर्वे रहता है, और प्लानिंग करके, अभ्यास करके, जो बारीकी बोलते हैं हम फार्मिंग में, जो बारीकियां चाहिए वो बारीकियां पे काम करते 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 उसमें सक्सेस मिलता है। और बहुत से फार्मर मैंने देखा है कि आज के डेट में एक 10-15% फार्मर मैं ऐसे बोलूंगा कि वो लाखों में कमा रहे हैं। एक पर एकड़ में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर ईयर, 4-5 लाख कमाना उनको एकदम इजी लगता है। मतलब 3-4 एकड़, 5 एकड़ खेती है तो हर साल वो 20-25 लाख आराम से कमाता है। ऐसे बहुत फार्मर मैंने देखे हैं। वो एक अलग क्राइटेरिया हुआ। बाकी के 85-90% फार्मर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें से 20-25% फार्मर ऐसे है कि वो मतलब जैसा पेट चलता है, जो जॉब करके सैलरी में मिलता है उसी हिसाब से वो कमाते हैं। और 50% फार्मर ऐसे कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इतना स्ट्रगल है कि वो उनको जो प्रॉफिट वो सामने देख के काम कर रहे हैं उसका वो हम इधर बोलते हैं मृगजड़, कि सामने दिखता है प्रॉफिट और कुछ ना कुछ उसको आफत आती है। कभी बारिश का आफत हो, कभी गारपीट बोलते हैं उसको, गारपीट का आफत हो, धूप का सामना करना पड़े, कभी सूखा पड़ता है, कभी हर टाइम कुछ ना कुछ होता है। कभी बॉम्ब हुआ, मार्केट गिरा, कभी कोरोना आया, मार्केट गिरा, कभी इससे पहले बहुत ऐसे छोटे 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 नोटबंदी हुआ तब मार्केट गिरा। ऐसे बहुत से चैलेंजेस है, छोटा छोटा कभी भी मार्केट में कुछ बदलाव आया तो भी मार्केट गिरता है, और उनको सामने दिखने वाला भी प्रॉफिट वो हाथ में नहीं आता। सर ये चीज मुझे ना हमेशा से समझ में बिल्कुल नहीं आती है। जैसे मैं जैसे देखता हूँ, बारिश भी हो, कोरोना भी हो, कोई और जो भी हो जाए, कलयुग खत्म भी हो जाए, खाना तो हमें खाना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में हमें ये नहीं आता है कि हम इतने पैसे लगा के शहर में हम सब्जी खरीदते हैं, हम गेहूं खरीदते हैं, हम चावल खरीदते हैं, इतना पैसा लगता है। और जब हम बेसिक गूगल सर्च या यूट्यूब में देखते हैं तो लगता है कि फार्मर्स को उतना खर्चा नहीं देते हैं जितना हम पैसे देते हैं मार्केट में, उतना तो उनको मिलता भी नहीं है। ये भी वजह हो सकती है क्योंकि ये तो हमेशा से बिना मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ये तो डिमांड में रहने वाली चीज है जो फार्मर का प्रोड्यूस जो है, ठीक है। और हम इधर भी सुनते हैं कि खुदकुशी फार्मर्स का सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, इंडिया में। और ऐसे 2-3 स्टेट भी है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, साउथ में 2-3 स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे किसान जो है खुदकुशी करते हैं। सर इसका क्या वजह है सर, क्यों ये मार्केट का गैप इतना क्यों है? एक तरफ जो पैसे जो बेच रहे हैं सब्जी शहर में वो तो करोड़पति हो रहे हैं, और हमारा किसान भाई जो है वो खुदकुशी पे खुदकुशी कर रहा है। ये अंतर क्यों है सर? सर फार्मर लोगों को प्रोडक्शन समझ में आ गया, प्रोडक्शन करना सीख गए हो, लेकिन उनको कभी मार्केटिंग नहीं समझ में आया। तो फार्मर लोग काम करते, खेती में काम करते 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 प्रोडक्शन सीख गए, प्रोडक्शन करने के उनकी स्पेशलिटी बन गई, लेकिन उनको मार्केटिंग किसी ने सिखाया नहीं और वो सीखे भी नहीं। मतलब आधा बिजनेसमैन है वो, करेक्ट। पूरा बिजनेसमैन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो उनको 1-2-3 चैनल मालूम रहते हैं। एक उनको सब्जी उगाना है, जगह पे कोई तो आता है और जो रेट देता है उसी हिसाब से उनको देंगे। वो बाहर जाके मार्केट में क्या रेट से बेचता है, कितना पैसा कमाता है, उनको मालूम नहीं। दूसरा चैनल ये होता है कि होलसेल मार्केट में, बम्बई वासी मार्केट में सब्जी भेजो, या दादर मार्केट में फ्लावर भेजो, और ब्रोकर लोग जो रेट देंगे वो जो पट्टी बनाएंगे। कर्नाटका या और एक बहुत से इधर ऐसा इतना पीछे है फार्मर कि जो ट्रांसपोर्टर लोग होते उधर जो पट्टी आता है उसमें भी काट छाट करके खुद पट्टी उसको बना के फार्मर को देते। सोचो 50 रुपए मार्केट में रेट गिरा तो हाथ में 20-25 रुपए ये आता है फार्मर के, वो भी होलसेल में। जैसे कि मेरीगोल्ड में
दादर मार्केट में जो फ्लावर जाता है वो 50 रुपए से उधर होलसेल में बिक गया तो जो ब्रोकर लोग है वो 40 से पट्टी बनाएंगे और उसमें 15% कमीशन काटेंगे और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसमें ऐड होगा। तो कभी कभी मैं तो ये भी सुनता हूँ कि किसान भाई जो है अपना जितना भी है वो लाते हैं, या टमाटर हो गया कुछ भी हो गया, कभी कभी रेट इतना कम लगाते हैं मार्केट में, वहीं पे फेंक के चले आते हैं कि हमें ये पैसा भी नहीं चाहिए। हम अक्सर न्यूज में ये पढ़ते हैं, क्योंकि उनके लिए ये भी मुनाफा नहीं होता है कि जो लॉरी लगा के आए उसका भी कभी कभी पैसे नहीं मिलते उनको। बहुत बार होता है ऐसा कि एक तो माल ब्रोकर लोग उतर के नहीं लेते क्योंकि भाड़ा कहाँ से भरो, ये आप लेके जाओ बाहर, नहीं तो किधर भी फेंक के जाओ, ऐसा बहुत बार होता है। इसके लिए एक कारण है सर कि इसमें एक बहुत बड़ा गैप है, वो गैप किसी ना किसी को भरना पड़ेगा कि जैसे कि फार्मर लोगों को फोरकास्टिंग नहीं है। मतलब आज पूरे इंडिया में टमाटर की कितना प्लांटेशन हो रहा है, वाटरमेलन का कितना प्लांटेशन हो रहा है, कैप्सिकम का कितना प्लांटेशन हो रहा है, एक क्रॉप का कितना प्लांटेशन हो रहा है, ये मालूम नहीं होता। तो कभी कभी होता है एकदम रेट बढ़ गया, सब लोग उसी प्रोडक्ट के पीछे भाग गए, उसी एक ही सब्जी के पीछे बहुत से फार्मर भागते हैं और वो फार्मर जो मार्केट साइज है, मार्केट का जो डिमांड है उससे 2 गुना 3 गुना प्रोडक्शन होता है और बाद में ऐसा होता है कि मार्केट में फिर रेट नहीं मिलता, पूरा रेट गिर जाता है, तो उसमें बहुत से फार्मर वो प्रोडक्ट करना बंद करते हैं। तो हमारे फार्मर लोगों को, बहुत से जो होशियार फार्मर है उनको समझ में आया है पूरे साल में एक ही क्रॉप करते रहना है। मतलब टमाटर का खेती करा तो पूरे साल में हर 1.5-2 महीने में नया प्लांटेशन, हर 1.5-2 महीने में नया प्लांटेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। एक सीजन ऐसा आएगा पूरा रेट गिरेगा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा। उसके बाद में एक सीजन ऐसा आएगा कि अच्छा रेट मिलेगा, एक सीजन ऐसा आएगा कि उसमें खर्चा निकल जाएगा। तो पूरे ईयर का उन्होंने एवरेज निकाला तो अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन उसमें एक 50% लोग ऐसे हैं, जब रेट अच्छा होता है तब प्लांटेशन करेंगे और जब रेट गिरेगा तो खेती करना छोड़ देंगे, वो टमाटर का खेती करना ही बंद करेंगे। तो ऐसा एकदम से एक प्रोडक्ट पे लोड ज्यादा बढ़ता है और एकदम से एक प्रोडक्ट करना फार्मर लोग बंद करते हैं, तो मार्केट का बैलेंस बिगड़ता है। कभी मार्केट की रिक्वायरमेंट जो है उसी हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होता। Thank you, Vikas ji. Dr. Mishra, I want to come to you and thank you for patiently waiting all this while. Sir, we have more cultivable land than China, right? And yet, the difference of market between China and India is almost $600 billion, right? Sir, when I look at what Vikas ji is saying, right? हमारे पास, and ये मैं कहीं सुना था कि हमारे पास इंडिया में we lose almost 85 to 90% of our produce in waste because we don't have enough refrigeration plants. We don't have enough supply chain management. Sir, what do you think is the problem? Why do you think companies, organizations, governments are not focusing on this? See, you have asked a very important question. And this needs some time to, let me divide into 3 parts. Sure. Okay. So first is, I will start with what are the positives with India. And as you have also said, that our cultivable land is more than China. It is a good thing. It is a good thing. The other good thing with India is we have diverse climate. So we can produce a plenty of crops. Right. सारे crops हम grow कर सकते हैं. Recently, you'll be glad to know that कि हींग समझते हैं, हींग एस्फोटिडा. हाँ जी. Total consumption of हींग in our country is around 1200 to 1500 tons. Is this per month or year? Per year. Okay. Per year. And till now, it totally depends upon imports from Afghanistan, from nearby countries. But recently, there has been some initiative in Himachal and Lahaul Spiti area that in coming 4-5 years, we may be able to harvest that crop, cultivate that thing. Very nice. So
I was trying to tell you is, I heard something similar about black salt, जो rock salt हम बोलते हैं ना, yes, तभी yes, मैंने similar कुछ stories. yes. So what I would like to say is that the diversity in our climate is important. Okay. Right. Interestingly, till 1980, China's economy was lesser than India's. Till 1990, we were ahead of China. आगे थे. Right. लेकिन इस बीच के 20-30 साल में China has taken a step further. They have taken the things in a mission mode. Right. To achieve that thing, and you have very rightly said that China's contribution in their GDP from agriculture is 10%. Ours is 15.4% at the moment. Right. Even then, the total contribution is 1/3 of China. Right? These are important numbers you are sharing with us. Yes. And the most important thing in this case is, सबसे जो जरूरी है, अच्छी ची बात है कि हमको एक उम्मीद दी जाती है कि हमारे लिए कम से कम वहां तक तो हम जा सकते हैं. Right? True. और because we have more cultivable land, so we may even exceed them. This is the positive side of the story. Right? Now coming to the practical side, होता क्या है कि आपको किसी भी चीज को करने के लिए मिशन मोड पे जाना पड़ेगा. I will give you a very small example. इजराइल का मैं नाम लूंगा. इजराइल, when it was established, एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने 2 चीजों का फोकस किया. One was water and other was food security. Right? ये 2 मिशन उनके थे. And they have done it so successfully that today they are exporters. इस एग्जांपल को मैं यही छोड़ के आगे फिर यूज करूंगा. What I mean to say is, if you have certain mission, you can achieve that. Sir, I am a little confused here. I'll be honest with you. Okay. जब से हमें आजादी मिली है, Right. ठीक है, हमने पहले पंचवर्ष प्रणालिकाएं बनाए, ठीक है, the 5-year plans. Yes. Every election, there is no election fought without farmers being one of the top 5, if not the top, yes, of the agenda items. हर एक साल हर एक पार्टी किसान के मुद्दे पे तो हर इलेक्शन लड़ी जाती है. Right? Let's not get political here, but I'm trying to understand the root cause of this problem. Yes. Right? And I see tons of initiatives, a lot of things that have been done. Do you think कुछ बदला है सर सिचुएशन? बिकॉज आप जैसे बता रहे हो, मुझे तो बिगड़ता ही नजर आ रहा है. इट्स ओनली रिसीडिंग. So when you say mission, and when I hear all this in terms of election manifestos and agendas from people, I'm seeing a gap. What is the gap, sir? Yes, very rightly said. And even in the book, the chapter that I have contributed, there was a question called why the farmer's condition is still pathetic. Just same you have asked. Correct. And I have used the same word that you have used twice or thrice. That is Kisan Bhaiyon. Right? Correct. It has typically remained as a political thing. We take them only for political purposes. चाहे उनको हम अन्नदाता कहें, चाहे उनको हम किसान भाइयों कहें, because they constitute 54% of the population. Exactly. And जैसे विकास जी ने कहा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस 54% टोटल में 85% जो है they are small and marginal farmers, जो 1 हेक्टेयर के आसपास का उसका ये है. They are totally unorganized. तो मैं जो मिशन की बात कह रहा था, मैं अचीवेबल की बात जब चाइना के लिए मैंने कहा तो the positive thing is yes, it is doable. It is doable. Now, if you take an example of paddy and wheat, in these 2 crop, चाइना का प्रोडक्टिविटी हमारे से 50% और 40% ज्यादा है. Right? बट विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब किसान का प्रोडक्शन बढ़ता है, सीजन खराब हो गया, प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई तो भी लॉस में है. और द मोमेंट प्रोडक्टिविटी हैज गॉन अप,
तो भी वो परेशानी में है क्योंकि उसको सरप्लस को फेंक के आना पड़ता है। इनफैक्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि ये बहुत ही करंट है, आपने भी सुना होगा, ये तेलंगाना में हुआ था, सिर्फ आई थिंक पिछले महीने ही हुआ था, जब सरकार ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया पहले ही, बहुत पहले दे दिया कि भाई हम हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से इस बार मक्की जो है, कॉर्न जो है, एक्सेस में जा सकती है, तो प्लीज आप वो खेत मत डालो, उसका खेती मत करो। फिर भी बिकॉज फार्मर्स वर यूज्ड टू ग्रोइंग दैट, तब फिर ने उगाया उन्होंने, और फिर रोने लगे कि भाई क्या करें, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, प्लीज खरीदो। यस, क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है? यस, सो व्हाट अल्टरनेट्स आर देयर, व्हाट आर द अल्टरनेट्स, समझ रहे? मेरा कहने का ये है कि इफ समथिंग इज नॉट टू बी डन, एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी डन, व्हाट शुड बी डन, राइट? दिस इज द गैप, एंड दिस गैप मैं जो फिर उस पे आ रहा हूं कि इसको करने के लिए, इस सेक्टर को करने के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग विल बी द कोऑर्डिनेशन फॉर द फार्मर्स with the farmer, for the research institute, by the research institute, by the companies and by the extension mechanism. ये हमारे यहाँ मिसिंग है। आज हम रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस के लिए तो करते हैं, हाँ जी, और ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, फार्मर की एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, राइट? रिसर्च उस पर फोकस करे, प्राइवेट एजेंसीज उसको मल्टीप्लाई करें, और एक्सटेंशन एजेंसीज उसको फार्मर्स तक लेके जाए, और इंप्लीमेंटेशन में जो प्रोसेस आई, जो चीजें आई, उसको फिर आइटरेटिव प्रोसेस में करे। दिस इज मिसिंग, infrastructure is missing, one thing, and the coordination between the agencies is missing. If these two things can be done, we can do miracles. wow, that's a very powerful point that you just mentioned. Users, if in case you didn't know this already, Dr. Mishra is doing extensive work in the field of farming for farmers. The gap that he just spoke about is exactly what his company does. It's called HF Service, is the founder, CEO of that company, and that is focusing on giving farmers the much needed education, the much needed analytics, research, in terms of how they can increase their productivity. If you recently heard about how the lychee farmers of Muzaffarpur, Bihar, have reaped in benefits, that credit also goes to Dr. Mishra. So, sir, I'm proud to have you on my show. Thank you. Thank you for that insight. विकास जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा। सर, आपने बहुत मुझे एक मिनट के लिए थोड़ा रिफॉर्म्स और जो प्रॉब्लम है वो बगल में रखते हैं। मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपसे पूछने के लिए। सर, मैं आपका जब स्टोरी पढ़ा बुक में, ये कोई बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आपने जो झेली हुई है लाइफ में, आपके जो कष्ट थे, आपने जितना सीखा, जहाँ पे खुद से आपने फन किया, आपने कोई डिग्री स्कूल 10th तक मैंने सुना आपने शायद पढ़ी हुई है, ये सब आप जब सोचते हो सर, राइट, कैसे मुश्किलें थी आपके लिए? अभी तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए बोलने के लिए कि भाई एक किसान भाई ने 12 करोड़ का कंपनी बनाया। सर, ये ऐसे ही नहीं बनती, क्योंकि जैसे मिश्रा जी बता रहे हैं, दिस इज नॉट इजी, राइट? तो आप कैसे कैसे मुश्किलें झेले हैं सर अपने लाइफ में, एक बार हमारे लिए बता दीजिए। सर, मुझे याद है, मैं 4th-5वीं कक्षा में था, तभी मैं खेती में काम करता था। तो जैसे जैसे मैं उम्र बड़ा होते गया, वैसे वैसे स्कूल में जाने से पहले 2-3 घंटा सुबह उठ के काम करना है, फिर फिर स्कूल में जाना है, और स्कूल खत्म होने के बाद शाम को 2-3 घंटा काम करना है। ऐसा चलता था, सैटरडे संडे कंटिन्यूस काम चलता था। फिर भी हम वैसे ही खेत में खेल कूद करते थे, लेकिन काम भी करते करते छोटी उम्र में ही परिस्थिति से हमें पैसा कमाने की भूख लगी। मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि बुक नहीं पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क बुक नहीं है, कुछ पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सैटरडे संडे खुद के खेत में काम करना है, नहीं तो दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करना है और फिर खर्चा चलाना है। ऐसे हम 10वीं कक्षा तक काम किया, और बाद में परिस्थिति ऐसी आई कि स्कूल छोड़ देना पड़ा, और बाद में दूसरे के खेत में जाके मजदूरी करते करते उधर थोड़ा काम मुझे अच्छा लगा,
तो उन्होंने वही फार्मर ने मुझे बोला कि आप उधर 1/4 या 50% पार्टनरशिप, ऐसा खेती में काम चलता है। उसी हिसाब से हम उनकी खेती करने लगे। तब लक ऐसा हुआ कि जब मैं 10वीं कक्षा से स्कूल छोड़ के जब मैं मेरे मामा के गांव आया, तब उधर एक ऐसा था कि उधर बहुत से फार्मर लोग कैप्सिकम का फार्मिंग करते थे। वो गांव कैप्सिकम के फार्मिंग के लिए फेमस था। पूरे पूना मार्केट, बम्बई मार्केट में सबसे ज्यादा कैप्सिकम जो आता था वो तुम एक विलेज से आता था, और वही विलेज में मैं आ गया। तो उसका कैप्सिकम का खेती करने लगा। ये 1994 की बात कर रहा हूँ मैं, 1994 1995 की बात कर रहा हूँ। वहां मैं देख वेजिटेबल जो कैप्सिकम है, शिमला मिर्ची बोलते हैं, शिमला मिर्ची का खेती देखते देखते वो शिमला मिर्ची का खेती करना सीख गया। और उसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि बहुत सब वेजिटेबल में सबसे सेंसिटिव क्रॉप बोलते हैं कैप्सिकम को, क्योंकि उसमें बीमारी के लिए बहुत सेंसिटिव है, धूप, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो वो क्रॉप में हम हाथ डाला और उसमें हमारा नॉलेज बढ़ते गया, लेकिन रिस्क भी वैसे ही बढ़ती गई। तो उस टाइम सब लोग कहते थे आधा एकड़ कैप्सिकम का मैनेजमेंट एक आदमी को करना बहुत मुश्किल है। उस टाइम मुझे थोड़ा ज्यादा पैसों की भूख थी, और मैं ये कभी सुना ही नहीं दिया मुझे कि आधा एकड़ एक आदमी अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। मैं 1 एकड़ करते गया, 2 एकड़ करते गए, 3 एकड़ करते गए, 4 एकड़ करते गए, और ये 4 एकड़ में कैप्सिकम बोना बहुत बहुत रिस्क है, क्योंकि एक बार फैल गया तो 2-3 लाख एक साथ उड़ मतलब सोचो एक साथ उड़ जाएगा। तो बाद में रिकवर होना या फिर से खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है। तो उससे तब मैं थोड़ा रिस्क कैलकुलेटेड करते गया, थोड़ा कैप्सिकम करना है, थोड़ा टोमेटो लगाना है, थोड़ा भिंडी लगाना, फ्लावर को भी लगा, पत्ता को भी, फूल को भी लगाना, ऐसा थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट करते गया। और तब बहुत बार ऐसा होता था कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता था, लेकिन मार्केट गिरता था, तब लॉस होता था। कभी कभी क्या होता था, क्लाइमेट से प्रोडक्शन फेल जाता था, तब रेट रहता था, तब फेल होता था। तब उसी टाइम एक क्रॉप में पैसा अच्छा मिला, एक क्रॉप में चला गया, एक क्रॉप में ऐसा अच्छा पैसा मिला, एक क्रॉप में चला गया। तो ऐसा एक बार ऐसा टाइम आया कि मेरा बहुत लॉस हो गया, मतलब 2-3 साल में अच्छा पैसा कमा के लॉस हो गया। तो बाद में रिकवर करना मुझे मुश्किल हो गया, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। तो मैंने बाद में फिर से दूसरे के खेत में मजदूरी करना मुझे वो हजम नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, खेती फार्मर लोगों से वेजिटेबल लेके बाजार में, छोटे छोटे मार्केट में जाके बेचने लगा मैं, और मंडी में छोटे छोटे जाके होलसेल वेजिटेबल लेके बेचने लगा। ऐसा करके 1 साल मैंने निकाला, और उसमें से थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया, और बाद में फिर खेती करना चालू किया। ऐसे करते करते 10 साल हो गए, 1995 से 2005 तक मैं उसमें 1997 में 2-3 साल में तुरंत जब कैप्सिकम का खेती करने लगा, तब खेती सब फार्मर खुद का प्लांट बना करते थे, और उसमें से उसके प्लांटेशन करते थे। तो हम भी प्लांट खुद का बनाना सीख गया, और वो अच्छी तरह से प्लांट बना के मैं खुद यूज किया। बाद में जो ज्यादा एक्सेस होता है वो फार्मर को बेचने लगा। और वो अच्छी क्वालिटी करने का एक मेरे एक बारीकी था मेरे मुझ में, कि जो सब फार्मर प्लांट बनाना मतलब छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, क्योंकि बड़ा क्रॉप कल्टीवेशन करना इजी है, छोटा प्लांटेशन तक बढ़ाना मतलब पौधा बनाना मुश्किल काम है, क्योंकि वो एकदम सेंसिटिव रहता है। और वो उसमें मेरे माहिरी हासिल हुई मुझे, और वो उसमें अच्छा पैसा दिख गया मुझे। बिजनेस गुंटा में मैं नर्सरी चालू किया, और उसमें नर्सरी प्लस खेती ऐसा दोनों एक साथ करते गए। 2005 तक 10 साल में मैं पौधा भी बनाते गया और खेती भी करते गए। लेकिन 10 साल में मैं कभी पैसा ऐसा मतलब
शिल्लक नहीं रहा, मेरा पैसा स्टॉक में नहीं पड़ा कभी, हर टाइम कर्जे में रहता था। 10 साल में काम करता था, बहुत पैसा आता था जाता था, आता था जाता, हर टाइम मैं कर्जे में रहता था। उसमें बहुत उसमें 1997 की बात कर रहा हूं मैं, एक हादसा हुआ था मेरी लाइफ में। मेरी बहन को बत्ती जो होती है, तब लाइट नहीं होती तो बत्ती होती थी, हाँ जी, वो केरोसिन केरोसिन की वाली ना, बत्ती होती हाँ थी, हाँ जी, हाँ जी। केरोसिन वाली। वो बत्ती उनके अंग पे गिरी और उसको अंग जल गया उसका। तो सिर्फ 30,000 रुपए एडवांस देने के लिए हॉस्पिटल में नहीं था, इसलिए सिविल हॉस्पिटल में लेके डाला, और कुछ ऐसा ज्यादा जला नहीं था, लेकिन 30,000 के लिए मेरी बहन की मौत हो गई। तब से और आग बढ़ गई पैसा कमाने की, और 2005 तक मैंने अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन एक बार एक सीजन में कमाता था, दूसरे सीजन में घुस जाता था, एक सीजन में अच्छा कमाता था, दूसरी सीजन में चला जाता था। ऐसा 2006-07 तक हो गया। 2007 में भी मेरे ऊपर 3 लाख का कर्जा था, और रिस्क लेता था, पैसा कमाता था, पैसा जाता था। ऐसे करते 2007 में मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। नर्सरी में 2007 में एक बड़ा सूखा पड़ा था, जो जून में बारिश आता था, वो जुलाई अगस्त में बारिश आ गया। तब जून में बहुत इधर से नर्सरी वालों का बड़ा लॉस हुआ था, सब नर्सरी वाले बहुत लॉस में चले गए थे, क्योंकि मानसून का बारिश आता है तब प्लांट तैयार होना चाहिए, और मानसून का बारिश आने के बाद फार्मर उसका प्लांटेशन करता है। तो उसी हिसाब से सब नर्सरी वाले जून में प्लांट रेडी रखते हैं। जैसे कि मानसून का बारिश आ गया तो इसे बेचना स्टार्ट होता है और पैसा कमाते हैं। तब जून जुलाई में बारिश आया ही नहीं, तो सब प्लांट सभी नर्सरी वालों को फेंक देना पड़ा, तो बहुत बड़ा लॉस सभी नर्सरी को हुआ, मेरा भी हुआ। लेकिन 2000 वो सूखा की वजह से उसी टाइम मेरा 3 एकड़ फ्लावर का खेती था। फ्लावर, वो सूखा गिरने की वजह से रेट बहुत बढ़ गया, और जगह पे अच्छे रेट से मेरा फ्लावर मार्केट में चला गया, और 2-3 लाख वो रुपए उसमें एक ही सीजन में मुझे मिल गया, और वो लॉस मेरा रिकवर हो गया। और उसी टाइम हम ब्याज से भी पैसा लेते थे, मैं से बड़े 5% ब्याज पर मंथ, 10% ब्याज पर मंथ, उसी हिसाब से हम पैसा लेते थे। और वो पैसा लेके हमने एक मेरीगोल्ड का सीड शॉर्टेज था, और वो 1,20,000 का मैंने सीड लेके आया, और 20 दिन में उसका प्लांट बना। और प्लांट बना तब दसरा दीपावली का सीजन आया था, जो प्लांटेशन करते दसरा दीपावली के लिए मेरीगोल्ड, और उसी टाइम बारिश हो गया। तो बारिश में एकदम से मेरा फट से वो प्लांट बेच गया। उसमें मुझे सिर्फ 20 दिन में 1 लाख रुपए मिल गया। तो उसमें फिर और मैंने उसका सीड खरीद लिया और डाल दिया, तो उसमें 1-2-3 महीने में 4-5 लाख मिल गए। फ्लावर में 2-3 लाख, और नर्सरी में 2-3 लाख, ऐसे 4-5 लाख प्रॉफिट मुझे तब मिल गया। तब कर्जा निकल के मैं एकदम से, तब हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गया था नर्सरी बिजनेस में, जो हम पहले जमीन पे बेड बना के पौधा बनाते थे। तब सीडलिंग ट्रे होता है, ट्रे में मीडिया कोकोपीट रहता है, उसमें प्लांट करने का नया टेक्नोलॉजी आया था, जो हम पहले ओपन फील्ड में खेती करते थे, प्लांट बनाते थे। तब शेड नेट, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ऐसा खेती आया। तो मैंने 2007 में एक छोटा सा शेड नेट हाउस बनाया, और उसमें ट्रे में हाईटेक नर्सरी बनाना शुरू किया, और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसे तब मैं पौधा बनाते गया, मार्केटिंग समझ में आ गया, थोड़ा इधर उधर जाके पहले गांव और 4-5 आजू बाजू के खेड़ूत पे हम पौधा बेचते थे। बाद में जब हाईटेक नर्सरी बनाते गया मैं, तो मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में मैं मार्केटिंग करने का, मुझे मार्केटिंग समझ में आ गया। जब उसमें भी कभी कभी कैसा होता था, बारिश ज्यादा होती थी तो पौधा सब मर जाता था। कभी पौधा अच्छा आता था तो बारिश नहीं होगी तो फार्मर लोग वो खरीदने के लिए नहीं आते थे। ऐसा बुकिंग सिस्टम का काम नहीं होता था, क्योंकि फार्मर लोग ऐसे, कभी किसान भाई प्लानिंग नहीं पहले करते थे कि 1 महीना पहले बुकिंग दे दे, 1 महीना पहले प्लांट बनाए, और
प्री प्लानिंग के हिसाब से खेती करें, ऐसा नहीं होता था। तो हमें गट फील पे रिस्क लेके पौधा बनाना पड़ता था। फार्मर वो सेल हुआ तो हुआ, नहीं तो फेंक देना, ऐसा रिस्क होता था। वो फेंक देने के रिस्क के कारण मैं वहां से सातारा डिस्ट्रिक्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग में चला गया और मुझे अलग अलग नया मार्केट मिल गया। और उसी हिसाब से मेरा फिर पौधा फेंक देने का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया और बहुत अच्छा। मुझे अच्छा मार्केट मिल गया बाद में। तब मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2009 में 10 में कैसा होता था, नेचर से मुझे रिस्क टेकिंग, रिस्क कैलकुलेट करने की आदत मिल गई। मतलब एक मिल गया कि रिस्क है तो उसमें रिस्क कैसे कैलकुलेट करना है, रिस्क के लिए बैकअप प्लान कैसे करना है, वो हो गया। उसमें खुद का सीड बनाना, जो सीड सस्ता में बनता है, फेंक दिया तो भी लॉस कवर हो जाएगा, ज्यादा लॉस नहीं हो जाएगा। और दूसरा, जो कलकत्ता से कटिंग आता था जो मेरीगोल्ड का, और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी मिल गई मुझे कटिंग से पौधा बनाने की, और वो टेक्नोलॉजी किसी के पास उस टाइम ज्यादा नहीं थी। और वो टेक्नोलॉजी पे मैंने सीख लिया कि कटिंग से कैसे रूट निकाल के पौधा बनाना है। उसी टाइम किसी के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो मेरा बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होने लगा। 2009, 10, 11 में मेरा हर साल दुगना बिजनेस होता था, और देखते देखते 2015 तक मेरा बिजनेस 10-12 करोड़ तक, 12 करोड़ पास हो गया। और 2016 से 2020 तक स्टैग्नेंट हो गए। मतलब हर एक प्रोडक्ट में जैसा मैं अच्छा बिजनेस बढ़ाते गया, वो प्रोडक्ट मेरा लाइफ साइकिल खत्म हो गई थी, क्योंकि छोटे छोटे प्लेयर आए थे, वो टेक्नोलॉजी सभी के पास आई थे, और सब वो उसी रीजन में काम करते थे और पौधा बनाते थे कम खर्चा में। और मेरा लोकल। ट्रांसपोर्ट डाल के नासिक में पौधा बेचना मुश्किल हो रहा था। 2014-15 में हम हाइब्रिड जो फ्लावर सीड रहता है, वो बहुत महंगा रहता था हाइब्रिड का, और वो सीड एक बार फेंक देना पड़ा तो बहुत लॉस होता था। तब हमने मीडिया में कॉस्ट कटिंग करने का मतलब ट्राई किया। मीडिया में हमने खुद मीडिया बनाना शुरू किया रॉ मटेरियल लेके। बाद में ट्रे जो बनाते थे, वो ट्रे भी हमने मशीन लेके ट्रे का भी उसमें कॉस्ट कटिंग करने का थोड़ा ट्राई किया। उसमें कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि ज्यादा पैसा जाता था, ज्यादा कॉस्ट होता था, वो सिर्फ सीड में जाता था। क्योंकि सीड सब मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे सिजेंटा, सेमिनस, मोन्सेंटो, बायर, ऐसे कंपनियां सीड बेचती थी। उसका सीड बहुत महंगा आता था, और उसी हिसाब से पौधा रेडी करके जो बेचते थे उसमें प्रॉफिट रेशियो बहुत कम था। 10-20 पैसा में हम मार्जिन पे काम करते थे। और एक बार पौधा फेंक दिया तो 6 महीना काम करके भी वो लॉस कवर नहीं होता था। तो 2014-15 में हम पहली बार सोच लिया कि सीड कंपनी करेंगे और सीड खुद का सीड खुद बनाएंगे। ऐसा सोच के 2014 में मेरा मेरीगोल्ड का सबसे ज्यादा परचेस था, कंपनी का सीड मैं परचेस करता था। तो 2014 में मैं ऐसे ही एक डीलर को पकड़ के थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके थाईलैंड चला गया। थाईलैंड में मेरीगोल्ड का ज्यादा से ज्यादा सीड बनता था, उधर से सीड इंपोर्ट करके मैं पौधा बनाते गया। मतलब थोड़ा सस्ता रेट पे मुझे सीड मिल गया। और बाद में वो उनका इंडिया में भी कोई अदर कंपनियां ट्राई करती थी सीड बनाने का। तब इंडिया में मैं जिधर सीड बनाते थे उधर घुस गया, और उधर की टेक्नोलॉजी मुझे समझ में आ गई कि कैसे सीड बनाते हैं। तो 4 साल पहले हमने इधर इंडिया में सीड किधर किधर बनता है, जैसे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट देऊलगांव राज्य में सिंजेंटा कंपनी सीड बनाती है, सेमिनिस कंपनी सीड बनाती है, बहुत से मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में भी सीड बना के, इधर कर्नाटका में रानीबेन्नूर एरिया है, उधर सीड बनाते थे और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो देख के मैं उनका टेक्नोलॉजी चुरा के थोड़ा इधर उधर करके सीड बनाना स्टार्ट किया। बाद में खुद का R&D बनाया बेंगलोर में। उधर एक अच्छे कंपनी से ब्रीडर जो डॉक्टर रहते हैं, जो नया सीडलिंग बना R&D में काम करने वाले, उनको हायर किया। बेंगलोर में अच्छा सा सेटअप बिठाया। अभी पिछले महीने में ही जो बायर में काम करता था, जो सीड प्रोडक्शन में 40 लाख अभी पैकेज देके उनको हायर किया मैंने पर साल।
तो अभी पिछले महीने में वो देऊलगांव राजा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मेरा मेरीगोल्ड का इस साल 500 kg सीड बन रहा है और अच्छा काम चल रहा है। लेकिन आज तक जो रिस्क था तो बहुत रिस्क लेते गए, बहुत बार रिस्क मतलब उल्टा पड़ा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसको रिस्क नहीं बोलते सर, ये तो बाजी थी, आप जीत गए बस। क्योंकि अगर देखिए बहुत बहुत बार ये होता है कि आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना बड़ा उसका ना होने पर जो नुकसान हो सकती है, राइट, वो उसके डर से बहुत सारे लोग जा नहीं पाते, बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। पर जैसे मैंने आपका पूरा स्टोरी सुना सर, मुझे लगता है आपने खुद सीखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया हुआ, इसीलिए तो इतना सक्सेसफुल हुए हो। सो बहुत बहुत अच्छा लगा आपके स्टोरी सुन के सर। मिश्रा जी, माय क्वेश्चन टू यू नाउ इज on that note, right? Sir, you have published 38 research papers. You're a PhD from IIT Delhi, right? You could have as well easily moved out of India and probably become very successful outside of India, right? Yet you chose to stay back, right? And ये जरूरी है मेरे लिए पूछना, क्योंकि it is so tempting for a lot of us. I know it is changing now. लोग वापस आ रहे हैं इंडिया में, but I'm very curious to know what's your inspiration, Dr. Mishra. Yes, very interesting thing. See, you have asked about going to outside country. I never thought of that. That was never in my mind. Yes, there were opportunities, but I never thought of going for doing some job there. See, there are two reasons for this. I am born and brought up in Nagaland. Kohima is my birthplace. Very nice. Okay, so that place is under Article 370. And even today, if you want to go to Kohima, you need an inner line permit. You need ID card. Right. So even while living within the country, we were thought of that we are second order citizen. तो वो जो था कोहिमा में जन्म होने की बात, वो बाहर जाने के लिए कभी इंस्पायर नहीं किया. This is one. Right. The second thing is when I joined this agriculture as for training, for education and for profession, I was quite clear from day one कि मुझे agriculture के ही periphery में रहना है, right? Right. That was your calling. That was my calling. And third, there's maybe a coincidence that 5th December is a World Soil Day. Right. World Soil Day. And coincidentally, that is my birthday. Wow. I feel myself to be associated with soil. And whatever effort I could make is all focused for the soil. Because when you say soil, S-O-I-L, it is soul of infinite livings. Right? When I describe this, I say that this is the kitchen of the world. Right. Kitchen of the world. And now to save that kitchen of the world is the utmost challenge with this mankind, with this farming fraternity. Especially the chefs in that kitchen. Yes. Especially the chefs in the kitchen, right? Yes, we are chefs in this kitchen, yes. Chefs are there, but our role is that of a facilitator. Right. If I go back, when you asked Vikasji a question, what is the problem? If I have to put this problem of farmer in 2 words, I will say the increasing cost of cultivation and declining margins from its production is the major challenge. Right. It's not motivating for farmers anymore, right? It is not motivating. See, if you read a report, it was published in Times of India on 23rd of May 2015, which said that 2,035 farmers are living farming on a daily basis. Right? Right. On a daily basis. So it is no more. And the irony is, yes, more and more people from the cities are buying the same lands from the farmers and getting into farming. Yes. Right? Yes. When the farmer, who's actually the trained one in that,
who's done that all his life, has all the skills to do that. Yes. उनको जमीन बेचना पड़ रहा है. Yes. और जो आईटी है या कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है जो शहर में पले पड़े हैं, Yes. वो वही जमीन खरीदते हैं और वहां पे वो आके फार्मिंग कर रहे हैं. मुझे बहुत फनी लगता है ये. I'm not saying it's wrong, but it's just the irony of the entire thing. No. And when you talk about the chapter that I have contributed, yes, very rightly said. This chapter, what I have contributed is it will be interesting for all the people because agriculture is known to all. तो जो लोग एग्रीकल्चर जानते हैं उनको थोड़ा और अच्छा लगेगा और जो एग्रीकल्चर नहीं जानते हैं उनको भी एक क्या कहते हैं बर्ड्स व्यू आई व्यू मिलेगा. But this book is focused for three purposes. One is the farmers. कि एग्रीकल्चर की जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, उस स्टेटस के अगेंस्ट उसको कहाँ ऊपर लिया जाए. The second is on rural entrepreneurship की जो माइग्रेशन है उसको रिवर्स माइग्रेशन में कैसे किया जाए, राइट. और जो थर्ड आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो व्हाइट कॉलर लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स को जॉब को छोड़ के उसमें जा रहे हैं वो उसमें वहां पे जाके क्या करें. सो how can we perhaps Yes. kind of be a bridge between the skilled farmers yes and the enthusiasts from the cities? city, yes. How do we plug them together so Yes. दोनों की दोनों की रहे. सो दोनों की जो एक्सपर्टीज है, दोनों की जो पॉजिटिव्स है, स्ट्रेंथ्स है, दे कुड मीट विथ ईच अदर, है ना. उसमें कहीं एलिमिनेशन नहीं हो. इफ देयर इज एलिमिनेशन देन तो वो अपनी काउंटर पार्टी खड़ी करेंगे. सो आवर सबमिशन शुड बी टू दैट दे हाउ दे कुड पुट अप देयर स्ट्रेंथ्स and work for the betterment of this country and agriculture in particular. Thank you, sir. And I couldn't help but keep thinking about what you said in your previous response. Yeah. You spoke about Israel, right? Yes. And now we are talking about that connect and how we need to do this. Yes. And you spoke very high about the Israeli model. Can you tell us a little more? I mean, Yes. maybe there is a lesson in that as well for all of us. Yes. See, as I started with this example, that if you go with a mission, you can achieve that. And very interesting, it will be interesting to know that in terms of size, Israel is smaller than our states Mizoram and Meghalaya as well. Right. But the climatic conditions are similar to that of Rajasthan, right? Right. Majority area is like desert. Correct. Right. Correct. So when they decided their mission, water saving was their first priority, right? Right. And depending upon the local conditions, they devised drip irrigation. Not devised, but they have made use of drip irrigation. Right. And interestingly, the efficiency of drip irrigation is 95%. Right. 95%. And that of flooding is 30%. Wow. If a plant needs 500 ml of water, in drip you hardly need to apply 525 ml of water. But in flooding, you will have to apply 1.67 liters or say 1.75 liters of water. So this huge water loss, right? This is the first thing that they could do. The second thing that they could do is, as the environmental conditions were very harsh, temperatures were very high, they focused on controlled conditions cultivation, right. greenhouse, polyhouses, and they created artificial conditions inside that, and they moved towards precision farming. Right. Precision farming. In terms of precision farming, you can diagnose up to an individual plant, right? That whether this has some particular disease, so right. This remedy to be applied to only that plant, right? Right. So this helps to bring down your cost of cultivation. Pesticide residue will be less, right? And your produce will fetch good price in the international market. So when I was talking about the mission for India, I was also to say that you will have to decide, because in most of the cases we are self-sufficient, right? True. But now we'll have to put focus on quality. Right. Focus on exports and focus on international standards, right?
So that, as Vikas ji has said, producing is a challenge and it is doable. But unless you talk from backward, ये जो मैं प्रोड्यूस करूंगा ये कहां बेचूंगा, उस मार्केट की क्या डिमांड है, उस मार्केट में कैसा प्रोडक्ट्स जाएगा, unless this information gap is bridged, it will be challenging. And sometimes I observe this myself when we go out in the market. Yes. हम खुद प्रिफर करते हैं कि कभी कभी इंपोर्टेड वाले ही खरीदें, क्योंकि जो दिखने में, क्वालिटी में देसी के आगे वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है। और ज्यादातर हमारे भारतीय जो है वो एक्सपोर्टेड ही, जो इंपोर्टेड है वही ज्यादा खरीदते हैं। और हमारे यहाँ पे, हमारे खेत में, हमारे मिट्टी में जो बनी हुई है उसको हम ले नहीं पाए। जैसे टमाटर ही हो गया, हाइब्रिड ज्यादा चलती है, जो बाहर से इंपोर्ट होती है। जो देसी का जो स्वाद होता है वो अलग ही होता है। यस यस। फिर भी लोग वो प्रिफर ज्यादा करते हैं, देसी वाला ज्यादा लेते नहीं है। So I know what you're talking about when when you're talking about quality. Yes. Let me ask Vikas bhai one question. Vikas bhai, अभी बहुत सारा, मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, बट ये क्वेश्चन मुझे जरूर पूछना है आपसे, ये सवाल करनी है सर। हमेशा से हम देख रहे हैं, ये स्पेशली पिछले 20 साल से ये बहुत चलता आ रहा है कि हम सबको सब फ्री में देने में तुले हुए हैं, है ना। और हमेशा से ये बोला जाता है किसान भाइयों के लिए कि हम आपके लिए सब्सिडी देंगे, राइट। और जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी, मैंने देखा कि आपने बहुत कुछ अपने खुद के बल से सीखा। आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया सीखने में, खुद सीखने में। आपने किसी के पास गया नहीं, या कोई आए नहीं आपको सिखाने के लिए, आप खुद सीखे हो, आप खुद काम किए हो वहां पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बस सब्सिडी पे सब्सिडी दिया जाता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस, इतने सारे भाषण देते हैं लोग। सर आपको क्या लगता है, आप तो किसान हो, आप हमें समझाइए, किसान को आज अपने भारत देश में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सब्सिडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई ट्रेनिंग दे उनको, कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई हेल्प करे उनको? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर किसान भाइयों को फार्मिंग कैसे करना है वो सिखाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि खेती कर रहे हैं लेकिन खेती का नॉलेज नहीं है। 70-80% फार्मर जो प्रोडक्शन आना चाहिए उससे 50% भी प्रोडक्शन नहीं आता, क्योंकि उनको ईसी मालूम नहीं, पीएच मालूम नहीं। आज भी जो भी फार्मर कर रहे हैं 90% फार्मर लोग जिसका पानी में ईसी बढ़ गया है, और ईसी बढ़ने के कारण मेरा खेत पूरा खराब हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं आ रहा, इतना भी मालूम नहीं। बहुत मतलब नॉलेज के या इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से बहुत लो लेवल पे हमारे किसान भाई लोग हैं। और उनको ऐसे कोई भाषण किया या कोई किसी ने सिखाया तो इतना जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होता। सीखेंगे, सुनेंगे और आएंगे, और जैसा जो जिनका चल रहा है वैसा ही चालू तो इम्प्लीमेंट करना। मैं मेरा खुद का ही बता रहा हूँ, जब मैंने वेजिटेबल स्टार्ट किया 1995 से 1994 से, बहुत से कौन से बीमारी में क्या दवाई देना है मालूम नहीं रहता था, और कब क्या करना है मालूम नहीं होता था। तो बहुत बार ऐसा होता था कि क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से बहुत बार लॉस होता था। कब नया थ्रिप्स का बीमारी आ गया, उसका दवाई मालूम नहीं, प्लॉट फेल हो गया। बाद में ऐसा नया कुछ बीमारी आता है, वायरस आता है, उसका दवाई मालूम नहीं, प्लॉट फेल हो गया। ऐसा बहुत बार होता था कि मैं 10 साल जो स्ट्रगल किया, वो सबसे स्ट्रगल का मेन कारण था मुझे नॉलेज नहीं था खेती का, और वो नॉलेज ना होने के कारण मैं ज्यादा स्ट्रगल किया। और शायद आज एक नया किसान जो है आपसे बस 10 मिनट बात कर लें तो शायद उनको 10 साल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सीखा हुआ है ना। तो कोई भी अभी आपसे बस बात कर ले, पूछ ले, तो शायद उनको वो 10 साल की जो रिस्क टेकिंग है वो शायद करना ना पड़े। आप यही बोल रहे हो ना? वही बहुत से फार्मर लोग क्या होते हैं, वेजिटेबल ट्राई करते हैं, मतलब अच्छा पैसा वेजिटेबल में मिलता है इसलिए ट्राई करते हैं। उनको खेती करना इतना, मतलब वेजिटेबल प्रोडक्शन करना उतना आसान भी काम नहीं, कि उसका नॉलेज नहीं तो आसान नहीं है। नॉलेज है तो बिल्कुल आसान है, लेकिन नॉलेज नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत बार फेल जाते हैं।
उसमें पैसा नहीं मिलता, लॉस जाते हैं। बाद में कपासी या गेहूं ऐसा जो इजी आने वाला क्रॉप करते हैं। गन्ना हमारे एरिया में, सांगली एरिया में आपको सर मालूम है बहुत गन्ना होता है, सांगली कोल्हापुर। तो गन्ना एकदम मतलब आसान काम है, लेजी आदमी का काम है। एक बार कर दिया तो 1.5 साल में पैसा आता है आराम से। हाँ जी, ऐसा है। मैं शिरडी बहुत जाता हूँ सर, तो वहां पे भी मैं देखता हूँ आसपास में अहमदनगर, औरंगाबाद के पास भी बहुत सारे गन्ने के फार्म है। और आई थिंक कॉटन भी बहुत ज्यादा वहां पे है, और शायद गन्ने का भी बहुत महाराष्ट्र में ज्यादा है। कॉटन, तूर ऐसे जो क्रॉप है उसमें उनका जो कष्ट करते हैं उसका सैलरी भी नहीं मिलता, इतना 10-15 हजार पर एकड़ मिलता है। कपासी में आप फार्मर लोगों को 10-15 हजार के ऊपर नहीं मिलता, और 2-3 घर वाले काम करने वाले रहते हैं। 3-4 आदमी घर का 10-15 हजार मतलब 4 महीने का उनका सैलरी भी नहीं होता। मतलब दूसरे के खेत में मजदूरी किया तो उससे ज्यादा पैसा आता है। तो फार्मर लोगों को नॉलेज की बहुत जरूरत है, और उसका उनको बाहर का भी नॉलेज जरूर है। जो मार्केटिंग का नॉलेज उनको मिलना चाहिए। जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि उनको प्रोडक्शन करना है, जिसको आता है उसको सेलिंग नहीं करना आता, और प्रोडक्शन करना नहीं आता ये 70% लोग हैं जिनको प्रोडक्शन करना ही नहीं आता। तो 4 लोग पैसा कमा रहे हैं, वो देख के वो ट्राई मारते हैं, लॉस जाते, फंस जाते, फिर ट्राई मारते, फिर फंस जाते, ऐसा उनका चक्कर चल रहा है। लकीली एक आधो क्रॉप में अच्छा पैसा बनता है, बाद में लॉस जाता है। तो हर एक फार्मर का पूरे 10 साल का एवरेज देख लिया या सर्वे किया तो उनको उनका सैलरी भी नहीं मिला। मतलब जो दूसरे के खेत में मजदूरी करके जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा कभी मिलता नहीं। ये 70% 80% लोगों का रेशियो है। बाकी का 20-25-30% है वो उनको गेम समझ में आ गया है। उनको मार्केटिंग का भी गेम समझ में आया, फोरकास्टिंग भी उनको समझ में आया है, उनको कब करना है कब रुकना है। बहुत से मेरे पास ऐसे फार्मर भी है कि जब सब फार्मर लगा रहे हैं टोमेटो तो वो टोमेटो कभी लगाएंगे नहीं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक पीरियड ऐसा आता है कि सभी वेजिटेबल को ज्यादा रेट रहता है, सभी वेजिटेबल को, और एक पीरियड ऐसा आता है कि सभी वेजिटेबल का पूरा रेट गिर जाता है। तो उनको मालूम है कब रुकना है और कब ज्यादा। अभी आजकल इंडिया में ट्रेंड चल रही है कि जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो यूजुअली रेट जो है बहुत बढ़ जाते हैं वेजिटेबल्स के, खासकर प्याज। तो पता नहीं वो कनेक्शन क्या है, मैं वो डॉक्टर मिश्रा जी से पूछूंगा बाद में, नॉट ऑन दिस इंटरव्यू। बट सर आप सही बता रहे हो। आई थिंक सब्सिडी भी कहीं तो भी जरूरत होती होगी ना, सिर्फ ट्रेनिंग से भी बात नहीं बन पाती होगी, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि सब्सिडी किसी भी चीज को शुरुआत में करने के लिए किसी चीज को प्रमोट करने के लिए इन ए टाइम बाउंड मैनर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। right. लेकिन उसको टाइम इमेमोरियल तक चलाने से, उसको right. करने से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। राइट, सही बोल रहे हो। होता क्या है कि आपको पता हो कि ये चीज मुझे 3 महीने मिलने वाली है, तो मुझे यदि अच्छी लगेगी तो मैं 3 महीने बाद खुद भी लूंगा। राइट, लेकिन होता क्या है, अभी क्या हुआ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकसान मैं बताता हूं आपको। टिल 2010-11 ये शुरुआत हुई 1970 के आसपास सब्सिडी के स्कीम, उसके पहले सब्सिडी नहीं थी। और 2010-11 के आसपास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में डायमोनियम फॉस्फेट आता है, मेरोडा पोटास आता है, इसको डीकंट्रोल कर दिया। राइट, नतीजा क्या हुआ कि यूरिया सस्ती हो गई कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर्स, और लोगों ने यूरिया सबसे ज्यादा डालना शुरू कर दिया। राइट, एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन ज्यादा डालेंगे, मतलब इजी अवेलेबल फूड है, तो प्लांट्स विल बिकम सकुलेंट, इंसेक्ट पेस्ट अटैक विल बी मोर। राइट, सॉइल का जो बैलेंस है न्यूट्रिशन का वो बिगड़ जाता है। आप प्लांट में फूड तो मिल रहा है आपको, यू आर फिलिंग योर बेली, बट इट इज नॉट न्यूट्रिशियस। राइट, सो सब्सिडी
for a limited period in the beginning is good, but not on a long-term basis. Thank you, sir. And on that note, and since you spoke about nutrients, Yes. आजकल market में globally this is a phenomenon Yes. where organic, the word organic has become a completely separate vertical, if I can say that, within farming. Right? You are the expert here, Dr. Mishra. What do you think is more important, residue-free farming or organic farming? Or is organic farming just another brand? Or should our farmers be focusing on residue-free farming? What's your thought? See, at any point of time, whatever you think, you as a student of science, it is important to have the answer of why. Why you want to go organic? Why you want to go residue-free, right? Right. And unless you have the reply for this why, it should not only be So for right now in the market, the way it is being projected, yes. the why seems to be very obvious, which is organic is, more safer. There are no pesticides. Maybe the taste is much better. Yes. That is what is being sold to us. I'm talking like a city dweller, right? Yeah, you're very right. But you see, and even on global level, we have the largest number of farmers involved in organic farming. But our contribution on a global level is less than 1%. Right. Like the entire state of Sikkim is organic, is what I've. Yes, Sikkim state is organic, no doubt. And it is not due to any other reasons. The advantage of Sikkim is it has a geographical location, only single road linking it to the plains. And that's why it could become organic. My submission is organic per se, as a food quality, it is important. But organic is not a produce, it is a production process. Right from the field, you will have to take the produce till the plate of the user in organic manner, right? And last year, I remember there was a workshop and I was invited to deliver a status report on that. So I had several questions. Even today for conventional farming, we are talking about warehousing problem, Correct. Infrastructure for cold chain, infrastructure for transportation, and blah, blah, blah. Do we have anything till date for organic? Do we have testing facilities for organic? No. So to me, the most important challenge as on date is to save water and to save your soil. Right. And topsoil. When I say topsoil, it is affected by soil erosion. Correct. And it is affected by injudicious use of inputs. Right? So last time when I was discussing with Vikas ji has a very valid question. When he directly goes for organic, his production decreases. Right? So anything should not be at the cost of your production and productivity. So as on date, now I reply your question directly, that first thing for us is, and I have been a practitioner of organic farming. And since the very inception of this concept, since 1987, I am a practitioner of organic. Right. But yes, it has been taken on not a right note without preparation. Right. So as you have very rightly said, as on date, it is more of a fantasy, and less purpose is solved. So our purpose should be to go for sustainable agriculture, to meet the world quality requirement, that is for MRL, minimum residue level. If we are able to produce that, we can do wonders. Right. I like the way you said organic farming is more of a fantasy. Yes. Because right now, sir, buying normal vegetables has become a luxury because the rates are so high. Yes. Right. So I think the next level to that is a fantasy, which is organic farming. Yes. An organic produce. So thank you, sir, for that. I have one final question for you, Dr. Mishra. Yeah. Where do you see India in terms of agriculture, right? And our constant race with China and the rest of the world. Where do you see India in the next 5 years? Yes.
Not next 5 years, it will take 15, 20 years. 15, 20 years. But yes, I as a professional, very optimistic and confident that, see, we are at number 2. We are at number 2. China is at number 1. China is at number 1. So we have all the positives. We have all the things. I will go back to my first thing, that if our mission is clear, there is no point that we are not able to achieve. We'll be able to achieve it. Probably even much earlier, because we have all the resources that are required for that. Yes. I will see. 5 years is very small period of time. What I mean, because the gap created in last 30 years needs some time to be filled. But yes, we are optimistic. We have all the positives with us, and there is no way that if we are able to put the things in one bucket with the mission mode, we'll be able to achieve it. So let's hope that perhaps in the next 5 years, we at least get our mission statement correct. Yes. So that then the next decade, we can focus on achieving that as well. So Dr. Mishra, thank you. विकास जी, आपके लिए एक आखिरी सवाल. सर, आपने इतना सब कुछ हमें बताया, थैंक यू फॉर दैट. सर, आपका क्या सपना है? आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हो? सर, मेरा बहुत बड़ा सपना है. मुझे 10,000 करोड़ वाला एंटरप्रेन्योर बनाना है, कि एक रेसिड्यू फ्री बिजनेस जो लाइट कट मॉडल पे बनाना है, और दूसरा मेरा नर्सरी बिजनेस और सीड कंपनी. ऐसा तीनों मॉडल लेके मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है, और उसमें मेरी जर्नी अभी चल रही है, और आने वाले 2-3 साल में बहुत बड़ा स्पीड पकड़ने वाले है हमारी कंपनी. सर, भगवान करे आपका इच्छा पूरा हो जाए. और आपने भी मुझे एक अभी आइडिया दिया है. मैं ये पर्टिकुलर इंटरव्यू को कॉपीराइट कराने वाला हूँ, क्योंकि जब आप 10,000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे ना सर, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे ये वीडियो दिखा के. तो मैं पक्का इसको कॉपीराइट करने वाला हूँ. थैंक यू सो मच डॉक्टर मिश्रा, विकास जी. सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप दोनों, क्योंकि आज हम देखते हैं मार्केट में स्टार्टअप्स के लिए जो सिटीज में जो यंग प्रोफेशनल्स हु आर ट्राइंग टू कम अप, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम. बहुत सारा सपोर्ट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे मैं तेलंगाना से हूँ, टी हब एक अच्छा सा इंक्यूबेशन सेंटर है स्टार्टअप्स के लिए. डॉक्टर मिश्रा, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट यू आर रनिंग समथिंग लाइक दैट फॉर फार्मर्स. सर, ऑफिशियली थ्रू दिस चैनल, विकास जी और मिश्रा जी, मैं आज ये बोलना चाहता हूँ सर, मेरे पास यू डू नाउ एक ऐप है, जो इन अ वे हमारा कॉन्सेप्ट जो आप कोशिश कर रहे हैं मिश्रा जी, वही हम करते हैं फॉर ऑल द अदर वर्टिकल्स. हमने आज तक फार्मिंग के बारे में सोचा ही नहीं था हमारे ऐप पे. सर, आफ्टर दिस इंटरव्यू आई विल गेट इन टच विथ यू. सर, इसके लिए कुछ सोचूंगा मैं. आई थिंक दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री राइट नाउ. From all of us from India, Vikas ji, Mishra ji, thank you for what you're doing. You make us proud. Hope you all create more farmers up. I love what you said, the reverse migration that you spoke about, Dr. Mishra. Yeah. I really hope that happens in the next 15 years, because if agriculture picks up speed, right, I think we'll already meet that $3 trillion promise that we have all given ourselves. I think that will become easy as well. Congratulations for your story being listed on the book Dhool, Dhoop and Dhakka. Again, a special shout out to the authors Arun and Deepak for making this happen for me. Sarji, thank you. Happy Diwali. Thank you. God bless you. Vikas ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Okay, thank you sir. Thank you. Thank you.